class. Welcome back to your maths class. So kids, let us start today's class with a new topic. Okay. Now before moving to our topic, let me ask you few questions. Okay. Now class, tell me, when do you get up? Okay. My first question to you is, when do you get up? Okay. Now, so most possibly your online class start at 9 a.m. So most possibly you will get up at 6. Yeah. So your answer must be 6 o'clock. Now my next question is, at what time you join your online class? So at what time do you join your online class? किस टाइम पे आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करते हो? Tell me, at what time do you join your online class? 9 a.m. most possibly. Yeah. At 9 o'clock. Okay. Now my third question is, when do you take your lunch? When do you take your lunch? When do you take your lunch? Well, after your online class or in between the class. So I guess at somewhere around 1:30 o'clock. Now, so here I have written 3 different times: 6 o'clock, 9 o'clock and 1:30 o'clock. Okay? Fine. Now you might be wondering why ma'am is talking about time. So that's because today I am going to start our new chapter, that is time. Okay? Today I am going to start our new chapter, that is time. Okay, so let us see. So when do you get up? At 6 o'clock. Now question arises, when do you get up? तो सो के कब उठते हैं? 6 o'clock morning or 6 o'clock evening? Yes, in morning I guess. Yeah. So for morning we write AM. At what time you join your online class? 9 o'clock. 9 o'clock in evening, in night? No, in morning. ठीक है? In morning, and that too AM. Now, when do you take your lunch? This is in afternoon, or you can write, we can write here PM. Now, what is this concept of AM and PM? What is this AM and PM? Okay, so basically this AM and PM is a division of the day. ठीक है? चलो एक चीज और देखते हैं. Okay. Now let us see one more thing. So here ma'am is going to talk about AM and PM. ठीक है? These are the 2 time phase. ठीक है? AM, generally in AM we refers time in the morning. सुबह के time को भी write in AM, and that too सुबह का time कब तक? 12 noon तक का. Okay? 12 noon तक का time.
and after 12 noon we write PM. After 12 noon we write PM. ठीक है, तो सुबह दोपहर के 12 बजे तक we will have our this time. AM में क्या, दोपहर 12 बजे तक we are having this AM time, and after that AM we will write PM. ठीक है, PM means what? शाम का वक्त, या we can say 12 बजे, दोपहर के 12 o'clock के बाद का टाइम. So we are studying about time, so let us make a time, make a clock. Okay, let us make a clock. Now, what is this here in my hand? Tell me, what is this? Yes, it's a clock, and this clock is showing 1 o'clock, है ना? This clock is showing right now 1 o'clock. Now, तो अब यहाँ पे देखो, इस clock में we are having 3 hands, 1 hand, 2 hand, and the third hand, this one, the thin one. Now this long one, ये जो long hand है, long hand हम क्या कहते हैं? Long hand को हम क्या कहते हैं? Long hand is what? Minute hand. This long hand is minute hand, and this short one is what? This short one is hour hand. Okay, so let us make a clock. Okay, let us also make a clock. So here I am going to make a clock. Okay. Up. Fine, this is my clock. This is what? This is my clock. And what I am going to do here? This is my clock. And चलो इस पे minute hand and hour hand भी बना देते हैं. तो okay. So what time this clock is showing right now? ये clock कितना time देख रहा है अभी? दिखा रहा है? Tell me. Its hour hand is at 3. Its hour hand is at 3 and the minute hand is at 12. ठीक है? तो ये कितना टाइम अभी शो कर रहा है? 3 o'clock. So this clock is showing 3 o'clock. So now, the hour hand. Now hour hand is at 3. है ना? Hour hand is at 3. See, छोटी वाली hand जो hour hand है वो कहाँ पे है? 3 पे है. And the minute hand is at 12. ठीक है, hour hand is at 3, minute hand is at 12, and the time is, what time this clock is showing right now? What time this clock is showing? The time is 3 o'clock. 3 o'clock. Okay, the time is 3 o'clock. It is written as
This time is written as okay. So with the help of this clock, इस clock से हमें कितनी इंफॉर्मेशन मिली? इस clock से हमें ये सारी इंफॉर्मेशन मिली. क्या क्या? The hour hand is at the 3. Hour hand देखो किस पे है? 3 पे है. The minute hand is at 12. Minute hand is at 12. Time is 3 o'clock. Time is 3 o'clock. And it is written as 300. 300. Okay. Now the next thing is, now the face of the clock. This whole face of the clock is called dial. Face of the clock is called dial. We call it dial. ये जो पूरा हमें face दिखता है, this face is what? Dial. ठीक है? And this dial is divided into 12 parts. This dial is divided into 12 parts. ठीक है? Face is called the dial, and this dial is divided into 12 parts. See, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dial कितने parts में divided है? 12 parts में. ठीक है? Now one more thing is there. अब इस clock के बारे में one more thing. See, shorter hand. शॉर्टर हैंड क्या होती है? आवर. शॉर्टर हैंड शो करती है आवर. एंड ये जो लंबी वाली लॉन्ग हैंड है वो क्या शो करती है हमें? ठीक है, शॉर्टर हैंड इज शोज द आवर एंड द लॉन्गर हैंड इट शोज द मिनट. ठीक है, आप फिर से देखो. This is a clock and the hour hand is at 3. Minute hand is at 12. Time is 3 o'clock. And it is written as 300. Okay? Got it? This much is clear? Okay, let us change the time now. Okay, so I am going to change the time. And accordingly, the rest of the thing will also get changed. Now, what time this clock is showing? Tell me. What time this clock is showing right now? 6 o'clock. Okay, तो अब यहाँ पे 6 o'clock शो हो रहा है. तो ये सारी चीजें क्या हुई होंगी? चेंज हो गई होंगी. ये सारी चीजें क्या हो गई होंगी? चेंज हो गई होंगी. आवर हैंड इज एट 3. ठीक है, अब ये आवर हैंड कितने पे है बताइए मुझे. आप खुद देख के मुझे बताइए आवर हैंड किस टाइम पे है. बताइए. नाउ द आवर हैंड इज एट 6. मिनट हैंड इज एट 12. मिनट हैंड किस पे है? मिनट हैंड इज एट 12. तो दिस विल रिमेन एज इट इज. टाइम कितना है? द टाइम इज 6 o'clock. तो जितने पे ये आवर हैंड होता है, छोटी वाली सुई, वी कॉल इट छोटी वाली सुई ना जनरली. तो छोटी वाली सुई, छोटी वाली जो निडल होती है वो जनरली जिस टाइम पे होती है उतना टाइम क्लॉक शो करता है. एंड इट इज रिटन एज हाँ 6 o'clock, right, like this. ठीक है. Now let us revise. Hour hand is at 6. Minute hand is at 12. Okay. Now this whole face is called the dial,
एंड दिस होल क्लॉक इज डिवाइडेड इनटू 12 पार्ट्स, है ना, दिस 12 पार्ट्स में डिवाइडेड है ना. ओके, शॉर्टर हैंड इज आवर हैंड एंड द लॉन्गर हैंड इज मिनट हैंड. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज दिस आवर एंड मिनट मैम इज टॉकिंग अबाउट. व्हाट इज दिस आवर मिनट? आपने देखा होगा जब हम रेस देखते हैं टीवी में तो उसमें होता है ना कि 15 सेकेंड में 15 सेकेंड में 30 मीटर पूरा किया. तो ये कैसे होता है जब हम हाँ. सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज आवर मिनट एंड सेकेंड. Hour, minute and second. Next topic is what? Hour, minute and seconds. Okay, let me make a clock here first. Okay. The easiest way to draw clock is, first of all you have to write 12, उसके नीचे 6, this here 3 and here 9. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11. Okay, this is our clock and this clock is showing 9 o'clock, है ना. This clock is showing 9 o'clock. Got it? Now see, ma'am is gonna talk about hour, minute and second. So hour. First of all, let us understand the concept of hour with the help of this clock. तो हमें पता चला ये जो छोटी वाली नीडल होती है, ये दिस छोटी वाली नीडल इज आवर हैंड. ठीक है. दिस शॉर्टर हैंड इज आवर हैंड. तो अगर मैं इसको मूव करूं, ठीक है, अगर मैं इसे मूव करूं, यस वी कैन एडजस्ट द टाइम. तो देखो अर्लियर, अब राइट नाउ इट इज एट 12. ठीक है. राइट नाउ इट इज 12 o'clock. और अभी मैं इसको और मूव करूं तो इट विल बिकम, अभी ये क्या हो गया 11. ठीक है. नाउ अब ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. ठीक है. It's 1. So first time it was 12, then I moved back to 11 and right now it is showing 1 o'clock. ठीक है. Right now this clock is showing 1 o'clock. ठीक है. तो अब आगे देखते हैं. तो मैम was telling you about the concept of hour. तो जब हमारी शॉर्ट हैंड, जब हमारी ये मिनट हैंड 1 फुल राउंड लगाती है क्लॉक के डायल का, तो ये शॉर्ट हैंड मूव करके 1 स्टेप्स आगे बढ़ जाती है और उसे हम क्या बोलते हैं, 1 आवर. ठीक है. नाउ 1 आवर, मिनट एंड सेकेंड. तो सबसे बड़ा जो टाइम ड्यूरेशन होता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम जो सबसे ज्यादा होता है वो होता है आवर का. आवर इज ग्रेटर देन मिनट एंड मिनट बड़ा होता है सेकेंड से. ना इतना तो हमें पता है. नाउ टेल मी, आवर इज 1 घंटे, 1 आवर, मिनट एंड सेकेंड. नाउ टेल मी, ऑनलाइन क्लास करने में हमें तीनों में से कितनी ड्यूरेशन लगती है जब हम ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हैं. व्हेन वी अटेंड, well let me make a column first.
टेल मी, ऑनलाइन क्लास आपकी होती है तो उसे अटेंड करने में आपको आवर्स लगते हैं, मिनट्स लगते हैं या सेकेंड्स लगते हैं? पूरी ऑनलाइन क्लास करने में आपको आवर्स लगते हैं, मिनट्स या सेकेंड? कितना ड्यूरेशन लगता है? टेल मी, ऑनलाइन क्लास अटेंड करने में कितनी ड्यूरेशन आपकी लगती है? बताइए। आवर लगते हैं, है ना? नाउ नेक्स्ट इज ब्रेकफास्ट। मॉर्निंग में जो नाश्ता हम करते हैं ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट करने में कितना आवर लगता है या मिनट लगता है या सेकंड लगता है? हाउ मच टाइम यू विल टेक टू डू योर ब्रेकफास्ट? You will take time in hour, in minute or in second? You will take time in hour, in minute or in second. So, ब्रेकफास्ट करने में हमें मिनट्स लगते हैं ना, मोस्ट पॉसिबली 15 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट्स, डिपेंड ऑन द कैपेसिटी। अब ज्यादा खाएंगे तो फिर इट विल टेक ना सम टाइम। Okay, moving ahead, next is what after this? अच्छा ठीक है, अब इसके बाद क्या है? After breakfast, next tell me, doing homework. Yeah, just homework. Let us write only homework. होमवर्क करने में आवर लगते हैं, मिनट्स लगते हैं? मुझे तो लगता है सेकेंड्स लगते होंगे, राइट? होमवर्क करने में आवर्स, बैटिंग करने में क्या लगता है? कितना ड्यूरेशन लगता है नहाने में? आवर, मिनट या सेकेंड? टेल मी, आवर, मिनट या सेकेंड? सो बैटिंग करने में हमें लगते हैं मिनट, मोस्ट पॉसिबली 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, इससे ज्यादा तो नहीं होना चाहिए। Now drinking water, ठीक है? नेक्स्ट इज व्हाट? ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर में कितना टाइम लगता है? सेकेंड, है ना? कुछ सेकेंड में हो जाता है, करेक्ट? या ओके, सो आई एम गोइंग टू erase some of the activity where I have kept the duster. अच्छा ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर में हमें लगा सेकंड। तो ऑनलाइन क्लास में कितनी ड्यूरेशन? आवर की, ब्रेकफास्ट में भी मिनट की, होमवर्क करने में आवर, बैथिंग में मिनट एंड ड्रिंकिंग वाटर में सेकेंड्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज वियरिंग शूज। ठीक है, वियरिंग शूज कितना टाइम लगता है शूज पहनने में? सेकेंड्स और आवर और मिनट? टेल मी, शूज पहनने में कितना टाइम लगता है आपने? To wear your shoes, you probably take some seconds, 30 to 40 seconds, not in minute. I don't think कि शूज पहनने में किसी को मिनट्स लगते हैं, ठीक है? तो this was the concept of hour, minute and second. Now one more thing. This whole concept of hour, minute and second, let me tell you, this whole concept of hour, minute and second, these things are interrelated, ठीक है? How they are interrelated, that we will read in some other class. Right now let us discuss few more activities, ठीक है? अभी कुछ और activity discuss करते हैं, ठीक है? तो I am going to erase this also. Now I am going to increase the duration. Increase the section of duration means here I am going to add days. Here I am going to add months. Okay, अब हमारे पास ड्यूरेशन बढ़ गई। मंथ, डेज, आवर, मिनट, सेकेंड।
सी हमारी पूरी लाइफ जो होती है वो इन्हीं टाइम फेजेस के आसपास चलती है, ठीक है। जैसे कि हमें हाफ ईयरली एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने में हमें मंथ्स लगते हैं, ठीक है। यूनिट टेस्ट की प्रिपरेशन करने में हमें डेज लगते हैं। देन होमवर्क करने में आवर, ब्रेकफास्ट में मिनट एंड शूज पहनने में सेकेंड, ठीक है। दीज ऑल थिंग्स। नाउ टेल मी, एक वीट प्लांट को ग्रो करने में कितना टाइम लगता होगा इनमें से? वीट, मैं पूरा नहीं लिख रही, आई एम जस्ट राइटिंग दिस ओनली। वीट प्लांट को, वीट की जो छोटी सी सीडलिंग होती है उसको ग्रो करने में कितना टाइम लगता होगा? टेल मी। वीट को ग्रो करने में मंथ, ठीक है। वीट की जो पूरी खेती होती है इट टेक फ्यू मंथ, उसके बाद वो फसल क्या हो जाती है? तैयार हो जाती है। ओके, इतना क्लियर हुआ। नाउ नेक्स्ट इज टू रीड अ बुक, टू रीड अ बुक, वन कंप्लीट बुक, वन कंप्लीट बुक, एक ऐसी थिक बुक को ऐसा कंप्लीट करने में हाउ मच टाइम इट विल टेक? दिस थिक बुक, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू फिनिश दिस बुक, ठीक है। हाउ मेनी पेजेस आर देयर? लेट मी सी। There are 122 pages, ठीक है। In this book there are 122 pages. So how many days or how many hours, how many minutes you will take? So to finish reading a book, to read a book you will take days, 15 days, 20 days, 30 days, ठीक है। Okay. Test cricket match. एक टेस्ट क्रिकेट मैच में कितना टाइम लगेगा? यू विल टेक मंथ, डेज, आवर, मिनट और सेकेंड। आपको पता है टेस्ट क्रिकेट मैच क्या होता है? टेस्ट क्रिकेट मैच 5 डेज तक चलते हैं, ठीक है। तो इट विल टेक डेज। टेस्ट क्रिकेट मैच के लिए डेज, इट विल टेक डेज। ओके, नाउ क्लोथ्स टू ड्राई, कपड़े सूखने में कितना टाइम लगता है? मंथ, डेज, आवर, मिनट और सेकेंड। टेल मी, क्या कपड़े सूखने में मंथ लग जाते हैं? इज इट सो? कपड़े सूखने में मंथ लगते हैं? नो। डेज? नो। आवर? नो। मिनट? नो। सेकेंड? नो। तो भाई कपड़े सूखने में, इसमें नो क्यों बोला? आर लगते हैं, ठीक है। जब हम मम्मा कपड़े वॉश करके जब ऐसा सन में ड्राई होने को डालते हैं तो उसमें कितना टाइम लगता है? कुछ घंटे लगते हैं ना सन में ड्राई होने के लिए, कपड़ों को कुछ टाइम लगते हैं ना ड्राई होने के लिए ना। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया आज की क्लास में? आज की क्लास में हमने डिस्कस किया अबाउट द क्लॉक। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। दिस इज क्लॉक, और ये जो क्लॉक होता है वो डिवाइड होता है किसमें? सेक्शंस में, ठीक है। कुछ इसके पॉइंट्स होते हैं 12 पार्ट्स में। 12 पार्ट्स में क्या होता है? क्लॉक क्या होता है? डिवाइड होता है। ठीक है, 12 इक्वल पार्ट में, मतलब 11 to 12 इक्वल ड्यूरेशन, 12 to 1 इक्वल, 1 to 2 इक्वल, 2 to 3 इक्वल। ये जो ड्यूरेशन इन 1 से 2 जाने में जितना ड्यूरेशन लगेगा वो इक्वल है। शॉर्ट हैंड इज आवर हैंड, लॉन्ग हैंड इज मिनट हैंड। तो इतनी चीजें आज हमने सीखी, और फिर हमने देखा द कंसेप्ट ऑफ आवर, मिनट एंड सेकेंड, ये भी हमने आज देखा, ठीक है। तो आज हमने इतनी चीजें देखी। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द रिलेशन बिटवीन these things, month, days, hour, minute, second. इनके बीच में जो टर्म्स है, जो रिलेशन है, that we will discuss and we will make some beautiful clocks also. Okay, till then, bye bye.